Hello dear students, welcome to English class. So today the passage that we are going to read out is from page number 31 and worksheet number 11. Okay, so this passage is about spiders. We all have seen spiders. Okay, बड़े spiders हैं, छोटे spiders हम सब ने देखे हैं. And now when we are going to clean our house for Diwali, we are going to kill so many spiders. है ना? So today's passage is about spiders. Take a pencil and start reading with me. Spiders. Spiders are man's friend. They are among our best friends. They destroy many harmful insects, including some of our worst enemies. These are the insects that devour our crops, cause disease both to us and to farm animals, and torment our spins. So spiders are man's friend. So here spider are regarded as man's friend. Spiders को इंसानों का दोस्त माना गया है. क्यों? लग रहा है ना कुछ अजीब, लेकिन क्यों इसके पीछे एक रीज़न है. They are among our best friends. Means they are one of our best friends. They destroy many harmful insects, including some of our worst enemies. अब उन्हें हमारा बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारे जो एनिमीज़ हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनको किल करते हैं, उन्हें मार देते हैं. वर्स्ट मीन्स सबसे बुरे. सो वर्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, है ना? बैड, वर्स्ट. ओके, सो दे किल आवर एनिमीज़. वर्स्ट एनिमीज़ मीन्स हमारे जो सबसे गहरे दुश्मन हैं, उनको ये किल करते हैं. अब वो कौन है? These are the insects that devour our crops, cause disease both to us and to farm animals, and torment our spins. These are the insects that devour our crops. और हमारे वो एनिमीज़ हैं, वो कीड़े मकोड़े, वो इंसेक्ट्स जो हमारे क्रॉप्स, जो हमारी फसल खा जाते हैं. cause disease both to us and to farm animals. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जो फार्म एनिमल्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं. एंड टॉर्मेंट और स्पिन्स. टॉर्मेंट मीन्स टू कॉज फिजिकल एंड टू अफेक्ट फिजिकली एंड मेंटली. ओके, सो जो हमें फिजिकली और मेंटली नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को ये स्पाइडर्स खा जाते हैं. दे फीड ऑन दिस सच टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, next, spiders do not have specific insects which they prey on. So spiders जो होते हैं वो कोई particular या कोई special insects पे feed नहीं करते. उन्हें जो सामने मिल जाता है, जो सामने available है, वो उसी को खा जाते हैं. Prey means खाना. They kill and eat whatever insects are available, though they do not usually prey on large ones. They kill and eat whatever insects are available. वो जो भी इंसेक्ट्स उनके सामने आ जाते हैं, वो उनका शिकार कर जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं. दो दे डू नॉट यूजली प्रे ऑन लार्ज वंस. लेकिन खुद से बड़े इंसेक्ट्स जो हैं वो उन्हें नहीं खाते. देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ स्पाइडर्स. स्पाइडर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, the weaving spiders and the hunting spiders. So what are the two groups of spiders? The weaving and the hunting. weaving means जैसे जो जाल बुनने वाले spiders होते हैं, और दूसरे जो spiders होते हैं वो शिकार करते हैं, है ना? These two spiders differ in various ways. So there is a lot of difference between the weaving spiders as well as the hunting spiders. The weaver have bigger spinnerets, those parts of body from which the silk comes out, and the legs are generally much longer with special claws at the end. So what is the difference? The weaver have bigger spinnerets. So जो weaver spiders होते हैं उनके जो spinnerets होते हैं, spinnerets क्या होते हैं? Those parts of the body from which the silk comes out. body का वो part जहाँ से silk बाहर आता है उसको spinnerets बोलते हैं. तो जो वीवर्स स्पाइडर्स होते हैं उनके जो स्पिनरेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. द हंटिंग स्पाइडर्स विच डू नॉट स्पिन वेब्स हैव स्मॉलर स्पिनरेट्स एंड स्ट्रॉन्ग थिकर लेग्स.
और जो हंटिंग स्पाइडर्स होते हैं उनके जो स्पिनरेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग थिकर लेग्स, उनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं, है ना। दे हैव बेटर आई साइट दैन द वेवर्स, और इनकी जो आई साइट है, देखने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है वेवर्स के कंपेयर में। But the weaver's sense of touch is more developed and they are more highly evolved than the hunters. But the weaver's sense of touch is more developed. लेकिन जो weavers होते हैं उनके sense of touch जो है, जो उनका मतलब किसी भी चीज़ को वो टच कर कर बहुत ईजिली रिकग्नाइज कर लेते हैं। कौन से स्पाइडर्स? weavers, ओके। एंड दे आर मोर हाईली इवॉल्व देन हंटर्स, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कंपेयर टू हंटर्स। द weavers do not take the trouble to hunt their prey, instead that set a trap and wait for the prey to get caught in it. The weavers do not take the trouble to hunt their prey. So जो weavers होते हैं वो ट्रबल मतलब अपने शिकार करने का कोई भी ज़्यादा वो मेहनत नहीं करते हैं वो लोग, and instead that set a trap and wait for the prey to get caught in it. तो वो क्या करते हैं? ट्रैप मतलब वो जाल बिछाते हैं और वेट करते हैं कि कोई भी उनका शिकार आके उस जाल में फंस जाए और वो उन्हें खा ले। तो जो वेवर्स हैं वो ज़्यादा हेडेक नहीं लेते, ज़्यादा मेहनत नहीं करते अपने शिकार को पकड़ने के लिए। दे जस्ट मेक अ वेब एंड दे जस्ट वेट by setting a trap so that insect comes and get caught in and they then feed on them. This trap, of course, the web is made from the spider's silk. तो ये जो वेब है, वेब मीन्स जो जाल है, ये किससे बना होता है? जो स्पाइडर से जो सिल्क निकलता है वो वेब उससे बना होता है। The silk is produced in glands in the back half of the body and pushed out through jets or nozzles called spinnerets. The silk is produced in glands. तो जो स्पाइडर्स का जो बैक पोर्शन होता है वहाँ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स से सिल्क निकलता है एंड पुश्ड आउट थ्रू जेट्स और नॉजलर्स कॉल्ड स्पिनरेट्स। और नॉजलर्स मीन्स अ स्मॉल ट्यूब टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, मीन्स एक ट्यूब होती है जिनको नॉजलर्स कहा गया है, जिससे जो लिक्विड बाहर आता है उसे वो मतलब निकालती है, मतलब कंट्रोल करती है एक तरह से। कॉल्ड स्पिनरेट्स, उन नॉजलर्स को हम स्पिनरेट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? सो दिस इज द पैसेज अबाउट द स्पाइडर्स। स्पाइडर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज हंटिंग स्पाइडर्स एंड वीवर स्पाइडर्स। एंड स्पाइडर्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू अस, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन इंसेक्ट्स को स्पाइडर्स खाते हैं, तो इसीलिए इन्हें दे हैव बीन टर्म एज आवर बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ स्पाइडर्स। रीड द पैसेज 2-3 times. After reading the passage 2-3 times, you have to solve the exercise that is given on page number 32. Okay, so this exercise is based on what we have read, so complete it. That's all. Thank you and have a nice day.